Hello students, today we are going to study about chemicals and chemical changes. See students, what are the chemical substances? First thing we need to know about, there is a matter and all the matter parts can be divided into two different sections. That can be either pure substances or the mixtures, right? The differences we can physically separate them. Then pure substances can also be divided into two sections. One is elements, which are entirely made up of similar kind of atoms, and the another one is compounds, जिसमें two or more than two types के atoms combine हो जाते हैं, right? अभी जब elements के आपस में chemical reaction होता है, then we get compounds. And when we talk about mixtures, there are two types of mixtures. One is homogeneous mixtures and second one is heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures mostly found in the solution forms, and heterogeneous mixture, तो for example you can see pizza, solid waste, ये सब क्या होते हैं, different kind of things have been mixed together physically. ठीक है students, so what do we understand by this? Pure substances, they can be divided into two sections, elements and compounds. Here in this topic we are going to study about elements, right, and compounds. So elements can further be divided into metals and non-metals that we are going to study in the higher classes. ठीक है, तो elements को हम दो parts में आगे divide करते हैं. वो section मैम ने यहाँ show नहीं किया because वो आप next videos में पढ़ोगे metals and non-metals की form में. The next is elements. तो सबसे पहले हमें समझना है कि elements क्या होते हैं. These are the base of the periodic table. जितना भी कुछ है हमारे आसपास वो सब कुछ का base क्या है? Elements. And you know students, we have almost 114 known elements. 114 known elements in the planet. What is an element? An element is a substance that is made up of only one kind of atoms. So stress किस पर है? Only one kind of atoms and cannot be broken down into simpler. Means हम एक एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, एक एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते और सिंपल फॉर्म में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन. याद क्या रखना है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स टुगेदर, that is called element, right? Each element has its own distinct set of properties. हर एलिमेंट की, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह से हर एलिमेंट की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. Now we'll work on compounds. See, हमने pure substances को divide किया था two sections में. Elements आपको समझ में आ गए. Now elements क्या थे? Same type of atoms. अभी हम बात करेंगे compounds की. Compounds क्या है? That is when two or more elements combine chemically. जब दो या दो से ज़्यादा chemical elements combine करते हैं तो that forms compound. The smallest particle of a compound is called molecule. ठीक है, अब आपको एक न्यू वर्ड यहाँ पर मिल गया, molecule. तो molecule क्या होते हैं? Compounds का smallest part होते हैं, which shows all the properties of that compound. ठीक है, one molecule of salt also shows all the properties of salt, and even 100 molecules of salt will also show the properties of salt only. Properties of compound is entirely different from those of its constituents. अब ये समझना बहुत important है कि properties अलग कैसे हैं. आपके सामने एक example है स्क्रीन पर. Water is a compound that is liquid. लेकिन अब water बनता किन दो चीज़ों से मिलकर है? Water बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके. हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है. तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस हैं, लेकिन जो रिजल्ट कंपाउंड है वो क्या है? लिक्विड. और इन दोनों से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना? तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. That we need to understand. ठीक है, अभी एक बार रिवाइज करते हैं. कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर when two or more elements combine together, and one type of atoms are called elements. Now two or more types of elements combined chemically are called compounds. I hope आपको समझ आ रहा है. अब हमारे पास एक थर्ड
कॉन्सेप्ट आता है मिक्सचर्स का। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। देखो जनरल में समझेंगे पहले कि मिक्सचर में क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को सिंपली मिक्स कर दिया, केमिकली कंबाइन नहीं किया। सी दिस इज द मेन थिंग, बट नॉट केमिकली कंबाइन, हमने उन्हें केमिकली कंबाइन नहीं किया, सिर्फ फिजिकली मिक्स कर दिया। अभी आपके सामने एग्जाम्पल क्या है, एयर। मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट्स की सेम रहती हैं। एयर में क्या है, अगर एयर के अंदर हम लोगों का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, इतनी सारी गैसेस हैं, लेकिन हर गैस की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना उसका मैनेजमेंट है, अपना सारा केमिकल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एयर में चली गई तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहेगी, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं है, वो मिक्सचर फॉर्म में, तो इसलिए वो ऑक्सीजन ही रहेगी और ऑक्सीजन की ही प्रॉपर्टीज वो शो करेगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। सपोज हमने थोड़े से आयरन फिलिंग्स को सल्फर के साथ मिक्स कर दिया, तो अब मैग्नेट घुमाएंगे अगर उसके अंदर, तो आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाएंगी। इसका मतलब आयरन फिलिंग की प्रॉपर्टीज तो सेम रही ना, सल्फर की प्रॉपर्टीज का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आया। सोच के देखो, सल्फर की जगह हमने उसमें वुड डस्ट मिला दिया, तो वुड डस्ट अपनी तरह से वर्क करेगा, आयरन फिलिंग अपनी तरह से वर्क करेगी। तो ये दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस सिंपली मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड। और प्लस आप इसका एक और चीज देखिए, इसकी परसेंटेज कितनी भी हो सकती है। कंपाउंड्स में एटम्स की नंबर फिक्स होता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स विल जॉइन टुगेदर एंड इट विल मेक अ कंपाउंड। बट मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप पिज्जा बनाते हो, पिज्जा इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर, राइट। अभी पिज्जा में आप 1 होल कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, एलोपिनियस आपने 5 एलोपिनियस डालने तो 5 डाल सकते हो, 6 ऑलिव्स डालने, या फिर आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप ऑलिव्स का नंबर 9 कर सकते हो, एलोपिनियस का नंबर 3 कर सकते हो, कैप्सिकम की स्लाइसेस का नंबर आप उसमें से 5 रख सकते हो। तो इट्स ऑन टू यू। तो मिक्सचर्स की कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द केमिकल सिंबल्स स्टूडेंट्स। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे केमिकल सिंबल्स क्लियर नहीं थे, तो जो भी केमिकल्स मिलते चले गए, केमिकल्स मींस एलिमेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग, जितने भी एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे ना, उनको सर जॉन डाल्टन ने एक पर्टिकुलर डिजाइन देना स्टार्ट कर दिया। आप स्क्रीन पर देखो, जैसे ऑक्सीजन को एक सर्कल प्रोवाइड कर दिया, हाइड्रोजन को एक सर्कल के अंदर डॉट लगा के दे दिया, कार्बन का सर्कल डार्कन कर दिया, नाइट्रोजन के सर्कल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, फॉस्फोरस में इस तरह से एक डिजाइनिंग कर दी। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को डिफरेंट डिजाइनिंग से शो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी वाटर आपको मालूम है क्या होता है, H2O। वाटर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया। अब इस तरह के उन्होंने पिक्टोरियल सिंबल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, लेकिन उतनी सारी उनके पास इमेजेस ड्रॉ करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे। मोरओवर जब केमिकल रिएक्शंस बनानी पड़ी, अभी आप देखो अपनी स्क्रीन पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो ड्रॉ करने में क्या होता था, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता था। अमोनिया को देखेंगे, NH3 होता है अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होती है, तो उन्होंने नाइट्रोजन बनाया, हाइड्रोजन। अब इससे ना एक तो ये पता नहीं चलता कि कितने एटम्स कौन से एलिमेंट के हैं, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। सिर्फ ये पता चलता था इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, लेकिन कितना कितना है, कितने एटम्स कंबाइन होंगे, ये वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू था। तो क्या हुआ, ये वाला जो हमारा सिस्टम था ना, ग्रेजुअली फेल होना स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिकल नहीं रहा ये, क्योंकि इट वाज वेरी मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। उस सिंबल का प्लेस लिया हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ने, दैट वाज गिवन बाय जॉन्स जैकब। उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंबल्स के लिए ना अल्फाबेट्स चूज कर लिए। आप भी खुद भी लिख कर देखोगे, कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, राइटिंग करने में स्पीड फास्ट होती है कंपैरेटिवली ड्रॉ करके चलने में सिंबल्स को, है ना। तो अभी देखो नाइट्रोजन का उन्होंने सिंबल क्या रखा, N। पोटेशियम, अभी पोटेशियम का अगर वो P रख देते हैं तो फॉस्फोरस का वो ऑलरेडी P रख चुके थे, तो उन्होंने, अब यहाँ पे प्रॉब्लम उनके सामने आ रहा था कि वो अपने सारे एलिमेंट्स के नेम्स के इनिशियल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते थे।
तो अब उन्होंने एक और लैंग्वेज को पिक किया। इंग्लिश के साथ साथ उन्होंने लैटिन लैंग्वेज भी पिक करनी स्टार्ट कर दी, और लैटिन लैंग्वेज में एलिमेंट्स का अगर कुछ और नेम है तो उसके नेम पर उन्होंने उसके इनिशियल्स पिक कर दिए। जैसे आप देख सकते हो नाइट्रोजन का नेम तो उन्होंने N रख दिया, लेकिन जब हमारे पास बात आई सोडियम की तो अब सोडियम के लिए उनके पास S नहीं अवेलेबल था, क्योंकि S वो सल्फर को दे चुके थे। तो उन्होंने सोडियम का लैटिन नेम पिक किया, दैट वाज नेट्रियम। नेट्रियम पिक किया, नेट्रियम से Na पिक कर लिया, क्योंकि सिंपल N भी नहीं पिक कर सकते थे, वो नाइट्रोजन को दे दिया, तो उसका नाइट्रोजन नेट्रियम में से Na पिक कर लिया। ऐसे कॉपर का उन्होंने क्यूप्रम पिक किया। कॉपर को हम ना लैटिन लैंग्वेज में क्यूप्रम बोलते हैं, तो क्यूप्रम में से Cu पिक कर लिया। तो इसी टाइप से उन्होंने कहीं पर इंग्लिश नेम यूज किए और कहीं पर लैटिन नेम यूज किए। अब आपके सामने देखो आयरन है, आयरन का उन्होंने आई नहीं रखा, बिकॉज आई ऑलरेडी वॉज गिवन टू आयोडीन, तो उन्होंने आयरन का लैटिन नेम पिक किया, दैट वाज फेरम, और फेरम में से Fe पिक कर लिया। सो दैट मीन्स उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली हर एलिमेंट को एक डिफरेंट सिंबल प्रोवाइड किया, डिफरेंट अल्फाबेट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कहीं पे उन्होंने अल्फाबेट सिंगल रखा, कहीं पे उन्होंने डबल अल्फाबेट कर दिया, तो दैट मीन्स दे हैव जस्ट सीन इन। अभी आप गोल्ड देखो अपने स्क्रीन पर, गोल्ड को उन्होंने Au नेम दिया, तो Au नेम कहाँ से आया? Au वॉज टेकन फ्रॉम लैटिन नेम दैट इज कॉल्ड ऑरम। गोल्ड को हम लैटिन लैंग्वेज में ऑरम बोलते हैं, तो वहां से हमने Au पिक कर लिया। तो ये आप समझ रहे हो, इस तरह से क्या हुआ, हमने डिफरेंट छोटे छोटे, अभी सिल्वर को क्या किया, अर्जेंटम होता है सिल्वर का लैटिन नेम, तो अर्जेंटम से Ag पिक कर लिया। तो दैट मीन्स उन्होंने छोटे छोटे सिंबल्स बना दिए हर एलिमेंट के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में से मिले तो इंग्लिश वर्ड में से बना दिया, अदरवाइज लैटिन नेम को यूज कर लिया। आर यू गेटिंग इट? आपको ये सारे मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स लर्न करने, राइट? आपको इन एलिमेंट्स के सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है एटॉमिसिटी। सी स्टूडेंट, एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसको हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। देखो जैसे अब कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक, जो एक ही एटम होता है, कुछ होते हैं डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉली एटॉमिक होते हैं जिनमें मोर देन 2 एटम्स होते हैं, है ना? आपके सिलेबस में मेनली टेट्रा एटॉमिक आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करना स्टार्ट करते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम, हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जो सिंगल एटम रहता है, ऐसे लिथियम गैस भी सिंगल एटम रहता है, ऐसे क्रिप्टॉन गैस भी सिंगल एटम रहता है, तो हम इनको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। सिर्फ 1 है इसके अंदर। अभी डायटोमिक की बात करते हैं। डायटोमिक में आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है H2। H2 इज हाइड्रोजन गैस, देन O2 ऑक्सीजन गैस, देन Cl2 क्लोरीन गैस। ये कभी भी अकेला H नहीं रह सकता, इसे किसी ना किसी के साथ कंबाइन करके रहना होता है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डायटोमिक। ना पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। अभी वाटर आप लोगों को पता है ना, H2O, तो यानी कि 2 times we are using H and 1 time we are using O atom, तो टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 3 एटम्स। तो हमारा वाटर क्या हो जाता है, ट्राइएटॉमिक हो जाता है। एक होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमेशा 4 एटम्स टुगेदर रहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज P4। तो P4 क्या है, फॉस्फोरस, दैट इज टेट्राएटॉमिक। तो आपको इससे एटॉमिसिटी समझ में आ गया। जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, that is called atomicity of that particular element. Now let's talk about valency. See, atomicity के बाद आता है valency। क्या चीज होती है, कंबाइन कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पर। हर एटम की ना बेटा, हर एलिमेंट की, हर एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो उतना ही कंबाइन कर सकता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें ना, तो सिर्फ वो 1 टाइम कंबाइन कर सकता है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसी क्लोरीन भी सिर्फ 1 टाइम वैलेंसी को चूज करता है, 1 टाइम कंबाइन करता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ऑक्सीजन 2 टाइम्स कंबाइन, देखो एक सिंगल एटम ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हो रहा है इसका, और एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हो रहा है, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। अभी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन किया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना, तो
तो दैट इज कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। लेकिन आप इस केस में एक बार रिवाइज करके देखना जरा, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 1। सिमिलरली इसमें भी, अमोनिया में भी और मीथेन में भी, इन दोनों के अंदर भी एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ एंड एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कंबाइन होता है। तो कार्बन इज एबल टू कंबाइन विथ 4 डिफरेंट hydrogens, but one hydrogen is combining with only one carbon, so hydrogen की valency is 1 in this and carbon की valency is 4। See students, वैलेंसी का हम लोगों को बहुत यूज होता है, हम जब केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं ना तब बिना वैलेंसी की नॉलेज के हम नहीं लिख सकते, सो आप लोगों को वैलेंसीज अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। सी अब फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल तो मैम ने आपको बता दिया, आपको वैलेंसी लर्न करनी पड़ती है ना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंबल्स लिखेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, उसके बाद उनकी वैलेंसीज लिखते हैं उसके नीचे, फिर क्रॉस ओवर कर देते हैं एंड वैलेंसीज अगर डिविजिबल होती हैं कॉमन नंबर से तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं। अभी आप आगे देखोगे ना तो आपको ये स्लाइड के सारे रूल्स दोबारा से अच्छे से समझ आ जाएंगे। हम ना सबसे पहले लास्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या, फर्स्ट रूल क्या था, हम सबसे पहले सिंबल्स लिखेंगे। अभी हम ना फॉर्मूला ऑफ वाटर लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। सिंबल्स को लिखने के बाद उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2. So what is happening? We are interchanging the valencies. So H will get 2 and O will get 1. So H2O. This will be the final formula. अब valencies are divisible by 1, तो इसके अंदर chemical formula H2O ही रहेगा। Now अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। First we are going to write कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सी 2 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द सिंबल ऑफ कार्बन, देन वी आर गोइंग टू राइट द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंसी मैम ने अभी पीछे वैलेंसी चार्ट में आपको बताया था, इट इज 4 एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी इज 2। नाउ वी आर गोइंग टू इंटरचेंज द वैलेंसीज, C will get 2 and O will get 4, तो you can see C2O4। now 2 and 4 ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, the final formula will be CO2, राइट। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं। देखो उसमें क्या रूल्स थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल्स लिखने के बाद उनके अंडर में हमें क्या लिखना है, वैलेंसीज लिखनी है। देन थर्ड रूल वाज इंटरचेंज द वैलेंसी एंड फोर्थ रूल वाज इफ आफ्टर इंटरचेंजिंग इट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर तो हम उसको शॉर्टन आउट कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। अब हम केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से पता चल रहा है 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन एटम। मान लेते हैं ये छोटा वाला हाइड्रोजन एटम है एंड 1 बिग वन इज क्लोरीन एटम, तो H plus Cl इट विल मेक HCl, सिंपल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वाटर का फॉर्मूला। वाटर का फॉर्मूला हमारे में क्या होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होते हैं एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है। तो देखो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, बॉल्स फॉर्म में, 2 small atoms of hydrogen and 1 big atom of oxygen. So it's easy to understand with the help of pictures. So this will convert into H2O. The next one is carbon dioxide. अभी हमने पढ़ा था ना वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बारे में। तो 1 एटम ऑफ कार्बन यूज होता है, हम ब्लैक वाले को मान लेते हैं कि ये कार्बन है, ठीक है, एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स रेड बॉल्स, दे आर द ऑक्सीजन्स, राइट। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल मेक CO2। तो मान लेते हैं ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और उसने क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको ये राइटिंग फॉर्मूला का पैटर्न भी पता चल गया, दिस इज the writing of symbols and then writing of valencies, then interchanging, and if it is divisible by any common number then we are going to divide and make the chemical formula in the final form, right students। तो today's session we are finishing it here only। next अभी हम लोगों का वीडियो जो होगा वो next topic से related होगा। in that topic we are going to discuss about chemical equations and the balancing of equations। till then students, stay safe।